FIR سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کتاب پہ بیڈ لگایا جائے. دیکھیے مسلمانوں کے لیے یہی کہیں گے کہ یہود و نصارہ کا جو پرانا طریقہ ہے کہ وہ مسلمان بن کے بہت سا کام کرتے ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ تفرقے کی بات کرنے کے لیے ہے، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے ہے. وہ انسان شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان نہ ہو. نمسکار، آداب. میں سید دانش علی پبلک لائیو نیوز سے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے پورو ادھیکش مرتد وسیم کے بارے میں، جس نے کچھ ماہ پہلے بھی قرآن کے بارے میں اپشبد کہے تھے، جس میں اس نے سپریم کورٹ میں یاچیکا دائر کی تھی. سپریم کورٹ نے اس کو لتھاڑتے ہوئے اس کی یاچیکا کو رد کر دیا اور 50,000 کا جرمانہ لگا دیا تھا اس پر. اب پھر وہ سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپشبد کا اپیوگ کیا. اس کا سمرتھن نرسمہانند سرسوتی نے کیا. انہوں نے اپنے مندر میں بلا کر، جس کے باہر صاف صاف لکھا ہے مسلمانوں کا آنا ورجت ہے، اس کے باوجود بھی مرتد وسیم کو اس نے بلا کر اپنے مندر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد شبد کا پریوگ کروایا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب اس نے چھاپی ہے، جس کو اس نے اپنے مندر سے شائع کیا ہے. آئیے اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں شیعہ علماؤں سے. مولانا اختر عباس جون صاحب سے. مولانا، آپ کا ہمارے چینل میں استقبال ہے. شکریہ. ہم بات کرنے جا رہے ہیں مولانا مرتد وسیم کے بارے میں، جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ یوز کیے ہیں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی لوگوں کی توجہ زیادہ اسی احمق انسان کی طرف ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے. یہ فقط ایک مہرہ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سازشی ذہن ہے جو بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ اسرائیل سے لے کے یہاں تک. آپ اس کے بیانات کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اس کو یہودیوں کے لیے درد ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دیکھو گے کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. ابھی یہ دونوں مل گئے ہیں، ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور وہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر کے، قرآن کی توہین کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. اس کا حتماً الٹا نتیجہ ہوگا. یعنی یہ یقینی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حق کے لیے جتنی مخالفت کی گئی ہے وہ اتنا ہی زیادہ ابھر کے سامنے آیا. بہت سارے لوگ رسول اللہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، قرآن کے بارے میں ہی. اپنے ملک میں بہت سارے ہندو لوگ ہیں جو نہیں جانتے تھے، لیکن اب وہ متوجہ ہوئے ہیں. ابھی کل میرے پاس ایک SDM لیڈی ہیں، ان کی طرف سے میسج آیا کہ مجھے کوئی انگلش میں اچھی سی رسول اللہ کے بارے میں کتاب دے. کل کی بات یہ ہے، تاکہ میں جو ہے اس کو رسول اللہ کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. اور یہ آج نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہو چکا ہے کہ 9/11 میں 2 بلڈنگیں امریکہ نے خود ہی توڑی تھی. ثابت ہو چکا خود توڑی تھی تاکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اسلام کو بدنام کرے. اسی زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. سب سے زیادہ امریکہ میں بکنے والی کتاب قرآن تھی. اور ابھی یہی ہوگا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ جہالت کے کام کر کے، نادانی کام کر کے اور دشمنی کے کام کر کے قرآن کو ہلکا کر دیں گے یا رسول اللہ کی سے لوگوں کو دور کر دیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ اس کے برعکس مسلمان تو اور مضبوط ہوں گے ہی. بہت سارے لوگ جو آزاد ذہن کے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں ابھی نہیں سوچا تھا، جنہوں نے قرآن کے بارے میں ابھی نہیں سوچا تھا، اب وہ قرآن پڑھیں گے، اب وہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، تو لازمی طور پر قرآن اپنا اثر کر کے رہے گا. اچھا، یہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں شیعہ ہوں، تو اس سے کیا مطلب یہ آتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ شیعہ ہیں؟ کیا شیعہ الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں؟ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ تفرقے کی بات کرنے کے لیے ہے، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے ہے. وہ انسان شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان مسلمان نہ ہو، کوئی رسول اللہ کی توہین کرے. اللہ اکبر. اچھا، رشدی نے جب کتاب لکھی تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آیت اللہ خمینی نے اس کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا. جو ابھی نائب امام ہیں یا جو مرجع ہیں، ان کی طرف سے کوئی فتویٰ آیا ہے آپ لوگ؟ فتوے کی ضرورت نہیں. فتویٰ روزانہ نہیں دیا تھا. فتویٰ جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. فتویٰ دین کا حکم ہے. دین کا حکم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے لیے. میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ کوئی بھی دینی فتویٰ، کوئی حکم جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جس زمانے میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ، جس ملک میں کوئی بھی اگر رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تمام شیعہ سنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مرتد ہے. مرتد کا حکم سب کو معلوم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے. آج کوئی فتویٰ دے یا نہ دے ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ فتویٰ آئے تاکہ اس کو ایک
प्रोपेगेंडे का ज़रिया बनाया जाए, तो वो फतवा नहीं आने की ज़रूरत है। वो फतवा हमेशा ऑलरेडी पहले से मौजूद है हमेशा के। अपने बरादरान को, जवानों को खास कर ये कहना चाहता हूँ कि अब पूरी दुनिया मुतवज्जे हो रही है, खासकर हमारे मुल्क के बहुत सारे जवान, हिंदू जवान मुतवज्जे हो रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ और कुरान की तरफ। तो हम अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और इन सलाहियतों के ज़रिए से लंबी प्लानिंग करके, कई सालों की प्लानिंग करके लोगों तक रसूलुल्लाह की सीरत, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह की पाकिज़गी, रसूलुल्लाह का इल्म, रसूलुल्लाह का तक़वा, रसूलुल्लाह की विज़डम, रसूलुल्लाह की सिफ़ात, रसूलुल्लाह की वैल्यूज़, रसूलुल्लाह के कमालात, ये लोगों तक पेश करें और कुरान के पैगामात लोगों तक पेश करें। चूँकि लोग प्यासे हैं, लोगों की ज़रूरत है, लोग खुराफात में, झूठी चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं, उनको ज़रूरत है कि हकीकत उनके सामने पेश की जाए और हकीकत रसूलुल्लाह की ज़ात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया आप लोग, अल्लाह सलामत। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट अवार्डेड डॉक्टर सैयद अमानत हुसैन साहब से, जो मदरसा सुलेमानिया के प्रिंसिपल हैं और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मौलाना साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मक़दम। हम सवाल करने जा रहे हैं मौलाना मुर्तद वसीम के बारे में, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, कुरान के शान में गुस्ताखी की है और माज़अल्लाह अल्लाह के शान में गुस्ताखी की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक अरबी का शेर है, इज़ा यसल इंसान ताला लिसानहु कसिन नौरिन मगलूबिन यसूलु अलल क़ल्ब। इंसान जब मायूस हो जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि हारी हुई बिल्ली जैसे शेर के ऊपर कब्ज़ा कर दे या कुत्ते के ऊपर हमला कर दे। वसीम की कैफियत वही हो चुकी है। ये बात किसी से अब छुपी हुई नहीं है कि उसने जो अपने चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के दौर में जिस तरह के गड़बड़ी की है और जितना पैसा बर्बाद किया है, जायदाद को वक्फ के जैसे तैसे बर्बाद कर दिया। उसके बाद से उसके पास बहुत सारे केसेस थे। पहले तो उसने सोचा था कि अपने जुल्म के ज़रिए, अपनी मक्कारी के ज़रिए हम फतेयाब हो जाएंगे, हम मक्कारी में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो सकता है और इस दरमियान में अल्लाह ने उससे तौफीक छीन ली। चूँकि एक चीज़ वाज़ेह है कि सिर्फ जनाब फ़ातिमा का माल खाने वाले जो हैं वही लानत के लायक नहीं हैं, वक़्फ़ का माल खाने वाले भी लानत के लायक हैं। वो इंसान भले कुछ ना कर सके, लेकिन ऊपर से उसकी तौफीक अल्लाह ने छीन लिया। वक़्फ़ की इतनी जायदाद और वक़्फ़ के ज़रिए पैसा खाया। नतीजा है कि अपने बचाने के लिए अब वो इधर चलाया। देखिए, वसीम ख़ुद इस लायक नहीं कि वो एक किताब लिख सके, वो कुछ बोल सके। ये तो हथकंडा हो चुका है। मुल्क के जो हालात हम जान रहे हैं कि सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन सी पार्टी है या कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं ने ये किताब लिख के इसे दे दी है। लेकिन बहरहाल अब तो वसीम को वसीम कहते हुए भी ख़राब लग रहा है, इसलिए कि लफ्ज़ मुसलमान का है। एक मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, उसने बहुत से बयान में कहा है कि वो शिया है, मुसलमान नहीं है। वो इस हैसियत से कह रहा है कि एक शिया के घर पैदा हुआ है। लेकिन इंसान अपने किरदार के ज़रिए पहचाना जाता है, अमल के ज़रिए, गुफ्तार के ज़रिए, रफ्तार के ज़रिए, किस कौम का है, किस कबीले का है। आपके सवाल में ही जवाब हम पूछना चाहते हैं, उसका कौन सा ऐसा काम है जो शिया का हो, बल्कि एक मुसलमान का हो। कभी कोई शिया इस तरह की है। देखिए, कुरान क्या कह रहा है कि तुम दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो। अगर तुम दूसरे के खुदाओं को बुरा कहोगे तो लोग तुम्हारे खुदा को बुरा करेंगे। दूसरे की किताबों को बुरा मत कहो। अब सोचिए, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान होकर खुद अपने ही खुदा को बुरा कह रहा है, अपने रसूल को बुरा कह रहा है, अपनी किताब। तो ये कहना उससे ज़्यादा तअज्जुब है जो उसे मुसलमान मान रहे हैं। उसका कोई काम जो है, कोई किरदार, कोई बात मुसलमान जैसी नहीं, इंसान की नहीं है। हम हिंदू मुसलमान क्यों करें और शिया और सुन्नी क्यों करें? उसका कोई काम अब जो है एक इंसान का नहीं रह गया। एक इंसान होने के नाते उसको सोचना चाहिए कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इज़्ज़तदार कोई शख्सियत है जिसे माना जाता है, हर कौम के लोग जानते हैं, ईसाई हो, यहूदी हो, नसारा हो, मुसलमान तो ही हैं, वो सबसे बेहतर इंसान दुनिया का जो मानते हैं वो पैगम्बर इस्लाम को मानते हैं। आइए उनके बारे में क्या कह रहा है, शायद हम लोग अपनी ज़ुबान से निकाल नहीं सकते। ये किताब लिखवाई गई है उससे, किसी ने टाइप करोड़ के दे दिया है कि तुम दस्तखत कर दो, हम तुमको बचा लेंगे। लेकिन ये भी एक बदला, खुदा के बदला लेने का तरीका है कि वो सिसक के मरेगा। जिस तरह खुद बदनाम हो गया, कौम को बदनाम कर दिया, और नाम इसीलिए वो रखे हुआ था कि सहारे जो है हम जीते रहें, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होने वाला, देखते रहिए। सलमान रुश्दी ने भी एक किताब लिखी थी जिस पे आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी किया था कत्ल का, तो क्या इसके खिलाफ भी कोई फतवा जारी हुआ अभी तक? देखिए, फतवा तो आना चाहिए था, अब मुमकिन हो आया। लेकिन देखिए, सलमान रुश्दी पे जिस वक्त इमाम खुमैनी ने फतवा जारी किया था, फतवा किस पर जारी किया जाता है? मुसलमान पे, मुल्हिद पर नहीं किया जाता। तो वसीम मुस्लिम मुसलमान है ही नहीं रह गया। अब
कहीं से मुसलमान नहीं है तो उस पर फतवा कौन देगा? मुसलमान पे ना फतवा देना है, तो मुसलमान तो रहा है नहीं, कहीं से नहीं है मुसलमान, तो फतवा कहाँ से आएगा उसको? अच्छा, एक बात और, ये यूपी शिया वक्फ बोर्ड का अभी मेंबर है, तो जैसे वक्फ एक्ट में है कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उसमें मेंबर या चेयरमैन रहने के लिए शर्त है कि मुसलमान होना है। तो जब ये मुसलमान से खारिज हो गया तो क्या अभी भी ये मेंबर है? यही तो खेल हो रहा है, यही तो खेल है। साफ 95 एक्ट में लिखा हुआ है कि शिया वक्फ बोर्ड के लिए शिया मुसलमान जो है वो मेंबर बनेगा, और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का सुन्नी जो है उसका मेंबर बनेगा। ये न शिया रह गया ना सुन्नी रह गया, लेकिन इसको ज़बरदस्ती जिताया गया। ये तो खुद यूपी हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो आदमी जिससे एक एक मुसलमान नफरत कर रहा है वो मुसलमान है, उसकी ये अभी जो इसने अभी चंद 10 रोज पहले जिस पे ये हंगामा हुआ है, इसके बाद तो उसी दिन यूपी हुकूमत को हटा देना चाहिए और उसकी किताब पे भी बैन लगाना चाहिए और उसको भी फांसी देने का ही करना चाहिए। वो शिया वक्फ बोर्ड का कभी मेंबर हो ही नहीं सकता है। अब रह गया कि हुकूमत अगर जो चाहती कर लेती। ये कि यहूद और नसारा का जो पुराना तरीक़ा है कि वो मुसलमान बन के बहुत सा काम करते आए हैं, वसीम से भी वही काम लिया जा रहा है। हम ज़रूर ये कहेंगे वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, ये जज्बात में नहीं आए इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, ये खेल नहीं खेला जाए। इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है कम से कम 2014 से, वो ये है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए, कभी शिया सुन्नी करके, कभी बरेली देवबंदी करके, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो हम जज्बाती ना हों, हम मतलब को समझे, मकसद को समझे। ये पहलू किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस लिए कहा जाए। सिर्फ मुसलमानों के जहन को या अपने मुतालबात कुछ गवर्नमेंट की तरफ ना रखें, या जो नुकसानात मुसलमानों के किए जा रहे हैं उन नुकसानात के लिए कुछ हुकूमत से मुतालबा ना करके उनके जहन को मोड़ने के लिए कि ये आपसी में उलझे रहें और हमें जो करना है हम करें। तो हम तो यही कहेंगे कि जज्बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को। हाँ, एहतजाज ज़रूर किया जाए इसके ख़िलाफ़, और FIR से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस किताब पे बैन लगाया जाए। ऐसे ही अपने अंजाम को खुद ब खुद पहुंच जाएगा। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का, छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको कि आपने याद। और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे यूपी के आलिम दीन अख्तर अब्बास जॉन साहब से, और पटना के मदरसा सुलेमानिया के प्रिंसिपल डॉक्टर अमानत हुसैन साहब से, इन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी न किसी की साजिश चल रही है जो आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की है। आप लोग से आग्रह है कि अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और फॉलो करें। अगर हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली न्यूज़ आप तक पहुँचाई जा सके। धन्यवाद।